able to understand the core of Jinagam. That's why Acharya Kumkundan Samaysar is explaining about Bheda Bhedatmak Drishti, Drabya Paryayaatmak Drishti, Nishchay Vyavaharatmak Drishti. So last time we were discussing on Gatha number 11. Vyavaharo Bhudatto, Bhudatto Desidodu Suddhanao, Bhudatmasido Khalu, Sammaditthi Havadi Jivo. तो इसका तात्पर्य ये था कि शुद्ध नय जो है वो भूतार्थ है, अर्थात सत्यार्थ है, अभूतार्थ है व्यवहार नय, और जो जीव भूतार्थ अर्थात निश्चय नय की शरण गहेगा वो आत्मा ही सम्यक्त को प्राप्त करेगा. Then we discussed about one example. So there was an example of water mixed with mud. So anyone can explain the example what we discussed last time? Kunjan ji, just for revision, if you remember that example. Yes, Saurabh ji. We talked about water and mud together, but if Samyak Drashti Jeev looks at that, he will only look at the pure form of water rather than thinking that the water is dirty with dirty by the mud, and he will again. The next step, he will separate them out. But if Mithya Drashti is looking at, he thinks that the water is all dirty and he doesn't consider the pure form of the water. Okay. So there was one word, एक शब्द था कतक फल. कतक फल फिटकरी जैसे रहता है ना, वैसा कतक फल होता है. तो गंदे उस पानी में डालते हैं जिसमें मैल मिला हुआ है, तो वो कतक फल को घुमाने से वो मैल नीचे बैठ जाता है और शुद्ध जल ऊपर आ जाता है. अधिकांश लोग तो उस पंक मिश्रित, मतलब शब्द ऐसा आया है, पंक मतलब होता है कीचड़, उस पंक मिश्रित जल को पी लेते हैं और वो रोगों से दुखी हो जाते हैं. लेकिन कुछ समझदार लोग होते हैं जो ये समझते हैं कि ये जल मैला नहीं है, जल इस मैल से अलग है और जल अलग है, इसीलिए उनको ये विश्वास होता है और वो कतक फल को उसमें घुमाते हैं और वो कतक फल से वो अलग अलग कर लेते हैं और इतना निर्मल कर लेते हैं. ऐसा आया कि इतना निर्मल कर लेते हैं कि उसमें पुरुषाकार भी स्पष्ट दिखाई देने लगता है. इतना क्लियर हो जाता है वो कि उसमें उनका स्वयं का चेहरा भी दिखाई देने लगता है और उस पानी को पीकर वो निरोग रहते हैं. इसी तरह से ज्ञानी जीव आत्मा को कर्म नो कर्म सहित मानते हैं और उसको वैसा ही सेवन करते हैं, इसलिए वो दुखी रहते हैं. लेकिन जो भूतार्थ दर्शी अर्थात जो निश्चय नय को मानने वाले हैं, वे अपनी बुद्धि से by using their intellectual or wisdom, what they have studied from Jin Shastra, they know that this is not an element mixed with Pudgal, but it is pure Atma. So when they use Swanubhav, so by using Swanubhav, like a person used Katak Fal to get the purest form of water, like they use the Swanubhav, and they can clearly see or they can clearly get the purest form of soul in form of self-realization. तो पुरुषार्थ के द्वारा वो प्रकट करते हैं आत्मा का अनुभव और अपने आप को ज्ञाय का अनुभव करते हैं. अनेक भाव रूप अनुभव नहीं करते. अनेक भाव रूप, इट मीन्स कि usually we consider ourselves as purush. Those who are stri, they feel themselves as stri, as balak, as brad, as I'm having a specific complexion. So in Chedala, मैं सुखी दुखी मैं रंग राव, मेरे धन ग्रह गोधन प्रभाव, है ना, बेरूप सुभग, मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, मैं गरीब हूं, मैं अमीर हूं, मैं रूपवान हूं,
मैं कुरूप हूँ, इस तरह से ऐसा माना जाता है, ऐसा मानता है अज्ञानी जीव। So ज्ञानी जीव is not feeling or is not considering or he has not accepted himself as a mixture of all these paryaya, all these things. So he is aloof. He thinks, not he thinks, but he realizes that he is free from all these anekta. Anekta, it means neither I am Purush nor Stri, nor children, nor black, white, millionaire, poor, etc. तो वो ज्ञायक जो पुरुषार्थी जीव होता है, वो अपने ज्ञायक स्वभाव को पहचान लेता है। तो कटकफल अपने से देखें तो व्हाट इज कटकफल हियर? सो कटकफल एंड शुद्ध न्याय। सो that person is using katakfal of fittery to get the purest form of water, and here a jeev is using shuddha न्याय to know or to get the purest form of soul. तो इसे अगर हम इसे संक्षेप में कहें तो ऐसा कह सकते हैं कि इस गाथा में आचार्य बताना चाह रहे हैं कि ये जीव अपने आप को, अपनी आत्मा को कर्मों से भिन्न अनुभव करे। तो जो जीव अपनी आत्मा को कर्मों से भिन्न करे अनुभव, उनको व्यवहार में अनुसरण योग्य नहीं है। दो चीजें होती हैं, व्यवहार में जानने योग्य नहीं है ऐसा नहीं है, व्यवहार में जानने योग्य है। लेकिन जो जीव अपने आप को कर्मों से अलग अपने आप को अनुभव करते हैं, फील करते हैं, उनको व्यवहार में अनुसरण योग्य नहीं है, अर्थात व्यवहार में उनको ग्रहण करने योग्य नहीं है, ऐसा इस गाथा में आ रहा है। इसी बात को अब वैसे देखिए तो और आगे जो आने वाले हैं, इसमें 12 नंबर की गाथा के बाद इसमें कुछ कलश चालू होंगे। वो कलश बहुत बढ़िया है। आई टोल्ड यू अर्लियर अबाउट कलश। सो कलश इट मीन्स the more clarification about that specific topic in very easy way, or addition, we can say that Kalash is addition of that Gatha or of that Prakran. So after 12 number Gatha, there will be some Kalash to explain this Vyavhar topic, Vyavhar and Nischay topic, and in those Kalash, Acharya will present a kind of balancing. Balancing means he is going to clarify about Vyavharnaya Swarup, he is going to clarify about Nischaya Swarup. Okay. So here Pandit Jaitanji Chavda also was a scholar from Rajasthan, and he also presented his vichar in this regard. वो ऐसा बोलते हैं कि जो व्यवहार नय को अभूतार्थ और शुद्ध नय को भूतार्थ कहा, जिसका विषय विद्यमान ना हो, असत्यार्थ हो, उसे अभूतार्थ कहते हैं। शुद्ध नय का विषय अभेद एकाकार रूप नित्य द्रव्य है, उसकी दृष्टि में भेद दिखाई नहीं देता, इसलिए उसकी दृष्टि में भेद अविद्यमान असत्यार्थ कहा जाता है। ऐसा तो है नहीं कि भेद रूप कोई वस्तु ना हो। रिमेंबर, ऐसा तो है नहीं कि भेद रूप कोई वस्तु ना हो। अगर आप कहें कि वस्तु ही अभेद रूप नहीं, तो आपको अपेक्षा नहीं। You have to clarify here that from the point of view of this Nyaya, from the point of view of this Nyaya, this vastu is भेद और इस वस्तु अभेद। तो हर अभूतार्थ शुद्ध को भूतार्थ कहा जाता है, जिसका विषय विद्यमान ना हो असत्यार्थ कहते हैं। शुद्ध नय का जो विषय है वो अभेद है, एक है, नित्य है, उसकी दृष्टि में भेद दिखाई नहीं देता। निश्चय ने ऐसा बोलता है, इट इज माई नेचर, इट इज माई नेचर, ये मेरा स्वभाव है, मैं भेद नहीं देख
हेलो, सौरभ जी आपका आवाज कट रहा था, अच्छा बीच में अभी कट रहा थोड़ा है मिस क्या? हो गया, थोड़ा थोड़ा कट ही रहा हाँ, है। हाँ नहीं सुनाई तो नहीं दे रहा था अभी, थोड़ी देर के लिए कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। अच्छा कोई बात नहीं, अगर थोड़ी देर ऐसा डिस्टर्ब रहता है तो आप कुंजन जी फिर मुझे आप फोन पे कॉल कर सकते हैं, ठीक है? तो ठीक है सौरभ। हाँ। तो यहाँ जो अभूतार्थ है वो व्यवहार नय है और शुद्ध नय भूतार्थ है। तो शुद्ध नय का विषय क्या है? शुद्ध नय का विषय है एक, नित्य, और उसकी दृष्टि में भेद दिखाई नहीं देता। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आई जस्ट क्लैरिफाई इन माय प्रीवियस क्लासेस दैट इफ वी वांट to make clear our thoughts and vision to see this world as well as अध्यात्म, तो हमें वस्तु का स्वरूप पहचानना पड़ेगा। Without understanding वस्तु स्वरूप, we will be in kind of depression. We will have more problem. We will feel more problems. Many such things which doesn't exist, but we will feel. So वस्तु का स्वरूप बहुत important है। अगर हम वस्तु का स्वरूप नहीं मानेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। ऐसे ही निश्चय ने क्या बोल रहा है? मैं मेरा स्वभाव पहचानो, मेरा स्वभाव अभेद है, मेरा स्वभाव भेद नहीं है। तो अगर आप अपने स्वभाव को भेद रूप मानते हो तो वो व्यवहार नहीं मिल जाएगा। मेरा स्वभाव तो अभेद है। सो निश्चय ने उस दृष्टि को भेद रूप दिखाई देखता नहीं है, और व्यवहार नय जो है उस वस्तु को भेद रूप देखता है। निश्चय ने से बोलता है हु, हम जब निश्चय ने से पूछते हैं हु एम आई, प्लीज टेल मी, तो निश्चय ने बोलता है यू आर प्योर सोल। जब हम व्यवहार नय से पूछते हैं हु एम आई, तो बोलते हैं आप मनुष्य, स्त्री, पुरुष, देव, नारकी। ये व्यवहार नय बोलता है। सो उसकी दृष्टि में असत्यार्थ कहा जाता है। ऐसा तो है ही नहीं कि कोई भेद, हाँ फिर ऐसा नहीं है कि कोई भेद रूप वस्तु है ही नहीं। व्यवहार नय का स्वभाव भेद है और निश्चय नय का स्वभाव अभेद है, तो हमें ये स्वभाव मानना पड़ेगा। तो व्यवहार नय जो है वो निश्चय नय व्यवहार नय का जो वर्णन करने वाली वाणी है उसे जिनवाणी बोलते हैं, और जिनवाणी को बोलते हैं स्यादवाद रूप जिनवाणी। हम ये सेंटेंस आप लोग ध्यान से सुनिए। जिनवाणी में प्रयोजन के अनुसार यथा योग नयों को गौण और मुख्य करके कथन किया जाता है। जिनवाणी में प्रयोजन के अनुसार यथा योग गौण और मुख्य करके कथन को किया जाता है। ये जिनवाणी की स्यादवाद शैली है। ये गौण और मुख्य क्या होता है? गौण मतलब कि जब एक चीज को मुख्य किया जाता है तो दूसरे का निषेध नहीं किया जाता, उसके बारे में चुप रहा जाता है, बोला नहीं जाता, उसे हम बोलते हैं गौण। तो जब निश्चय नय का वर्णन करते हैं तब व्यवहार नय को गौण कर देते हैं, और जब व्यवहार नय का प्रयोजन के अनुसार वर्णन करते हैं तो हम निश्चय नय गौण कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एट द टाइम ऑफ स्टडिंग चरणानी, we always discuss about व्यवहार नय, क्योंकि चरणानी योग जो चरणानी योग है ना, वो चरणानी योग तो पूरा का पूरा जो वर्णन करता है वो काय के बारे में करता है? चरणानी योग वर्णन करता है भोजन संबंधी, क्रिया संबंधी, शरीर संबंधी। तो शरीर किसका? निश्चय नय से पूछते हैं तो बोलते हैं आपका नहीं, लेकिन व्यवहार नय क्या बोलता है? नहीं, ये पर्याय आपकी है, किसी और की नहीं है। चरणानी योग जो हमारा सेगमेंट है, हमारा योग है, वो चरणानी योग ये बोलता है कि आपको शुद्ध भोजन करना चाहिए, आपको टाइम से उठना चाहिए, शुद्ध वस्त्र पहन के मंदिर जाना चाहिए, भगवान जी का प्रक्षाल शुद्ध वस्त्र पहन के करना चाहिए, हिंसा नहीं करनी चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। सो चरणानी योग, व्हाट चरणानी योग इज टेलिंग अस, सो इट इज एक अपेक्षा, इट इज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू व्यवहार में अपेक्षा है यहाँ, ये पूरा कथन व्यवहार नय की अपेक्षा से है। बट व्हेन वी टॉक अबाउट that this soul is अभोजन स्वभावी, आत्मा कुछ नहीं खाती, कुछ नहीं करती,
So by default, so by default, we can understand this that Acharya is talking from the point of view of Vyavharnay or Nischanay. So Charnani Yoga is from the point of view of Vyavharnay and Dravyani Yoga from Nischanay. तो यहाँ आप लोग ये बात याद रखिए, मैं पूछता भी हूँ, आप लोग याद कर लीजिए। जिनवाणी स्याद्वाद रूप है और प्रयोजन के अनुसार नयों को यथा योग मुख्य और गौण करके कथन करती है ना। जिनवाणी इज स्याद्वाद रूप and as per the usage, Jinvani tells us the description or the nature of anything like soul, what we want to know about that. तो जो मुख्य और गौण की व्यवस्था है वो जिनवाणी वैसी बताती है। जिनवाणी स्याद्वाद रूप कथन करती है और प्रयोजन के अनुसार नयों को मुख्य और गौण करके बताती है। ये मेरे ख्याल से क्लियर है आप लोगों को। सौरभ जी, ये सेंटेंस क्लियर है? जी सौरभ जी, क्लियर है सेंटेंस। हाँ, क्या बताया यहाँ, बताइए क्या कहा सौरभ जी, इसमें आपने ये बताया कि जिनवाणी स्याद्वाद रूप है और जो शैली कथन करने की जिनवाणी में, उसमें कभी किसी कथन को, किसी नय को मुख्य किया, कभी किसी को गौण किया। तो प्रयोजन के अनुसार नयों को गौण अथवा मुख्य करके कथन करने की शैली है जिनवाणी की। ओके, गुड। हाँ, आप बताइए कुंजन जी, क्या बताया इसमें? मुख्य गौण की व्यवस्था का क्या आपने डिस्कस किया अभी? सौरभ जी, यहाँ पे ये भी कहा है कि मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह के आपका ज्ञान का संयोजन हो और आप किस तरह से समझ सकते हो, उसी तरह से व्यवहार और निश्चय से भी समझाया गया है। और उसके साथ फिर स्याद्वाद को यूज कर आप किसको गौण करें और किसको मुख्य करें, वो थोड़ा उस पे ध्यान दिया गया। हाँ, ये प्रयोजन के अनुसार। एक अभी कलश आएगा आगे, उसमें लिखा है दुर्बल को जो लाठी है हस्तावलंबत्यों। जिस तरह से दुर्बल जीव को लाठी हस्तावलंब है, वो बिना उसके नहीं चल सकता, ऐसे ही जो अज्ञानी जीव हैं या जो प्रारंभिक भूमिका में हैं, उनको व्यवहार नय का अवलंबन दिलाया जाता है। तो एकदम सही पकड़ा आपने ये चीज कि व्यक्ति की अंडरस्टैंडिंग कैसी है, अर्थात प्रयोजन के अनुसार वहां कथन किया जाता है। अगर आपने व्यवहार ने अच्छी तरह समझ लिया है और आप निश्चय को समझना चाहते हैं तो समझिए, लेकिन दोज पर्सन हु हैव जस्ट स्टार्टेड टू अंडरस्टैंड, तो आपको उनको चरणानी योग के माध्यम से ही बताना पड़ेगा। आपको उनको ये बताना पड़ेगा, जीव की डेफिनेशन आप ये नहीं बोल सकते यू आर प्योर सोल, जीव मतलब आप। फिर धीरे धीरे बताइए कि ये देखो, ये जीव मतलब जो आपके शरीर के अंदर कोई रहता है ना, वो जीव कहलाता है। तो गहराई से समझने की बात तो ये है कि निश्चय नय का वर्णन जो किया जाता है, व्यवहार नय का वर्णन तो मिलता है, मैक्सिमम व्यवहार नय का वर्णन मिलता है। एक पूरा अनुयोग, दो पूरे अनुयोग, सो प्रथमान योग एंड चरणान योग, टू अनुयोग डेडिकेटेड टू व्यवहार नय ओनली, because what in Prathaman Yoga there is a depiction of stories of our Mahan Purush, so it's natural that all belongings, all vaibhav, beauty of their body, what the Acharya write there, so that is only from the point of view of Vyavharnaya. And in Chardani Yoga, what Acharya is telling about our eating habit and sleeping habit and walking habit and talking habit and ahimsa, aste, etc. So this is also from
the point of view of Vyavharnay. But you know, Acharya is telling here, I am intensely telling you about Nischay because it is more rare. Though to follow the Vyavhar Kriya is also rare, but to listen and to understand about Nischay is also a rare event or rare thing. That's why I'm describing here, I'm narrating here Nischay and Vyavharnay both. But if you ask that why should I understand Vyavharnay and why should I understand Nischay? So after Gatha number 12, Acharya will clear about why Nischay and why Vyavharnay and where it is useful. So श्री गुरु जो हमारे मुनि हैं, ये मैं जो बता रहा हूँ ये सारा का सारा पंडित जयचंद जी छाबड़ा ने कहा है, वो मैं आपको बता रहा हूँ जो उन्होंने कहा है। ये सेंटेंस उनका ही है। जिनवाणी स्याद्वाद रूप है और प्रयोजन के अनुसार नयों को यथा योग्य मुख्य व गौण करके कथन करती है। फिर श्री गुरु ने शुद्ध नय के ग्रहण का फल मोक्ष बताया, इसलिए उसका उपदेश प्रधानता से दिया है और कहा भी है कि शुद्ध नय भूतार्थ है, सत्यार्थ है, इसके आश्रय करने से ही सम्यक दृष्टि होता है और इसको जाने बिना जब तक जीव व्यवहार में मग्न है तब तक आत्मा के ज्ञान श्रद्धा निश्चय सम्यक दर्शन नहीं हो सकता, ऐसा जानना। सो आचार्य कुंद इन सेकंड नंबर लाइन इन गाथा नंबर 11, भूदत्त मस्जिदो खलु सम्मादिट्ठी हवति जीवो, भूतार्थ की ही शरण गए यह आत्मा सम्यक लहे। तो निश्चय ने it is not true sentence that Vyavharnay does not exist in this world. Vyavharnay is there because Parya is there. But what Acharya Kund is saying here that without understanding or without taking the shelter of Nischay, you will not be able to realize yourself. And until you will not be able to realize yourself, you cannot get salvation or permanent happiness. तो इसलिए उन्होंने कहा कि किसी भी जीव को अगर मुक्त होना है या सच्चा सुख चाहिए तो उसके लिए उनको निश्चय नय का ही आश्रय ग्रहण करना पड़ेगा। तो आई होप you are just getting my point, not my point, the point of Acharya through my voice. So you are just getting the point of Acharya. He's in very humble manner, in very polite manner, or in very easy manner. He's just trying to explain us that there are two Nay. You know, in Vastu, there is no Nay, but it is the medium to understand Vastu. वस्तु में कोई भी नय नहीं है, केवल वस्तु को समझने के ये प्रकार हैं, माध्यम है ये नय। तो आत्मा में कहाँ निश्चय नय बैठता है, कहाँ व्यवहार नय बैठता है, ये स्टेटमेंट ही गलत है। ना कहीं निश्चय नय है ना व्यवहार नय है। बस बात ऐसी है कि वस्तु को समझने के लिए हम इन दो नयों का प्रयोग करते हैं। ओके, प्रेरित जी हैज रेज्ड his hand. Do you have any question? Yes, sir. So the question I have is, so like you mentioned, only when we truly understand the Nischay, then we can attain Nischay Samyak Darshan. Now, Samyak Darshan can happen like according to Jinwani, can occur in all four gatis, including Tiryanj Gati. And we see many examples when a lot of GU attain Samyak Darshan in Tiryanj Gati, like Mahavir Swami Bhagwan's GU, who attained Samyak Darshan in lion, as a lion, and then right before when he was actually killing a deer. So then Muniraj comes and then give Updesh, give teachings to that lion, and then he attains Samyak Darshan. But how that lion or any animal quickly get Samyak Darshan? Because a minute ago he was just eating a deer by killing it, and now yes, Muniraj is giving Updesh, but do they really explain Nischay and Vyavharnay in that Updesh? And how does lion able to take advantage of Nischay to attain Samyak Darshan in that short frame of time? Okay.
It's a good question, and I think very practical question. There are many examples of Triyanchi Gati. Like there's an example of Parshnath का जीव. So पार्श्वनाथ के जीव ने हाथी की क्रिया में समर्थन प्राप्त किया था, है ना. महावीर भगवान ने त्रियंच की क्रिया में अर्थात शेर की क्रिया में समर्थन प्राप्त किया था. So it's a question that he was just a clear leader, and he had no understanding of Nischay and Vyavhar. Even he was not, it was not following any Charnani Yoga. And after an hour, two Muni just came from the sky. They came down and Disconnected. Saurabh, you get disconnected or? Yeah. Saurabh, are you there? hello. हाँ सौरभ जी, आपका वॉइस ब्रेक हो गया था बीच में. हाँ, तो पूर्व के संस्कार होते हैं कुछ प्रेरित जी. तो पूर्व के संस्कार के कारण से उनको याद आ जाता है. और वहां ऐसे देखें तो कोई व्यवहार ने का उनने अवलंबन नहीं लिया. मेनली आचार्य ने जैसे समझाया तो उनको इंस्टेंट क्लिक हो गया और वो उनको सम्यक्त प्राप्त हो गया. एक मतलब एक ऐसा है, और अपन दुनिया में भी काफी सारे एग्जांपल्स देखते हैं ऐसे. फॉर एग्जांपल कालिदास. You know the story of Kalidas. Kalidas was a very foolish person. It was very well known saying that you are foolish as Kalidas. So Kalidas was a very foolish person. He was from Ujjain, nearby Indore. तो उसकी कोई मित्र थी और उसने उनको बोला कि भाई आप में भी इंटेलिजेंट बनने की सामर्थ है. और कहीं कोई जाए बिना, कोई बड़े स्कूल में कॉलेज में जाए बिना वो इतना बड़ा विद्वान बने वो कालिदास जी कि अभी भी उनके कंपैरिजन में कोई विद्वान नहीं है. ऐसे ही जैसे मुनिराजों ने उपदेश दिया तो उनको पूर्व का याद आया. तत्काल उनने प्रयोजन भूत उनने निश्चय नय का अर्थात अपना अवलंबन लिया. निश्चय नय मतलब उनको नए भले ही मालूम ना हो, लेकिन भाव भासना तो होती है ना. जैसे माँ पे कोई निबंध लिखा हो तो एक ने तो शब्दों में बोला है, लेकिन एक बालक को भाव भासना तो है ना. भाव भासना इट मीन्स हेलो. हाँ सौरभ जी, आपका आवाज कट गया था, फिर से आया. मैं आपको ज्वाइन करता हूँ 1 मिनट सौरभ जी, फोन से. हाँ हाँ, उससे कर लीजिए. अभी क्या है, आधे घंटे क्लास चल रही. हाँ सौरभ जी, 2 मिनट दीजिए मुझे, आप चालू रखिए, मैं आपको कॉल करूंगा तब आप ज्वाइन हो जाना. हाँ, इस पे भी ऑनलाइन रहने तो उस वाले फोन पे लगा लीजिए मुझे, दूसरे पे. ठीक है.
Hello. Yes, Saurabh ji. आ रही है आवाज मेरी? Yes. Just mute कर दीजिए आप एक मिनट. हेलो. Yes, Saurabh ji. हाँ, तो क्वेश्चन ये था हमारा कि उनको कैसे संवेदनशील हो जाता है. बहुत सिंपल सा रीजन है कि उनको भले ही ये नहीं आता हो कि ये निश्चय नए है, ये व्यवहार नए है, लेकिन उनको उसकी भाव भासना होती है, जिसे बोलते हैं उनको सेंस रहता है. So in this world there are many persons and they are very expert in any specific field. Even they don't know about the theory of anything, but they know the practical of that. मैं यूजुअली यहाँ इंडिया में देखते हूँ, जैसे आपके यहाँ तो अगर कोई मकान बनाने वाला भी होता है ना, तो काफी ट्रेन होता है वो, उसे पूरे ग्राफ पता होता है, चार्ट पता होता है. लेकिन यहाँ मैं देखता हूँ कि बड़े अनपढ़ कारीगर, अनपढ़ लोग इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना देते हैं और हमें जान के आश्चर्य होता है कि कैसे बना देते हैं. उनसे पूछते हैं कि आपने कोई डिग्री ली, बोले नहीं, और एक्यूरेसी रहती है, पूरी बिल्डिंग समझ लो वही बना रहे हैं, लोग बना रहे हैं. ऐसे यहाँ प्रेरित जी वो जो शेर था, वो शेर को भाव भाषण हुआ इस चीज का कि भाई आचार्य जो बोल रहे हो, फिर उसकी योग्यता भी आ गई थी. तो निश्चय ने की विषयभूत जो वस्तु थी ना, उनका आश्रय लिया. तो निश्चय ने की विषयभूत वस्तु क्या थी? आत्मा. निश्चय ने की विषयभूत वस्तु जो आत्मा थी, उसका आश्रय लिया, उनको सम्मर्शन हो गया. That's why we say that when a line can get sammadharsan by listening teaching of Muni, so I think we are superior than that line. We are having more facility, more opportunity, and more wisdom, intellectuality than that line. So it's very easy to get sammadharsan in this Manushya Pariyaya. I usually quote you that we are passing from the golden era of this time, of this Pancham Kal. हम पंचम काल के स्वर्णिम युग से निकल रहे हैं. कोई ये कह सकता है नहीं सौरभ जी, कोई स्वर्णिम युग नहीं है, लड़ाइयाँ बहुत हैं, बीमारियां बहुत हैं. आप अगर इतिहास को उठा के देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि पुराना काल तो और ज्यादा भयानक था, अभी तो कुछ है ही नहीं. तो this is the golden time when we can get sammadharsan. But there will be another question that line can get sammadharsan in that situation. It means in Triyansh Pariyaya. And why we are not getting that? Even we are attending temple every day. We are following Chandaniyo. We are just following ahimsa, stay, aparigraha. Then why we are so far from sammadharsan, and why so far we have not get that? Answer is simple. Saurabh, What Acharya Kunkund is saying is Gatha number 11 in second line. भूदत्तमस्सिदो खलु सम्मादित्ति हवदि जीवो. वो निश्चय ने का आश्रय नहीं लेता, इसलिए उसे सम्मर्शन नहीं होता. निश्चय नए मीन्स निश्चय नए के विषयभूत भगवान आत्मा का आश्रय नहीं लेता. और शेर को सम्मत इसलिए हुआ क्योंकि उसने निश्चय नए के विषयभूत भगवान आत्मा का आश्रय लिया. So, but question I have is yes. So the follow-up question I have is, so yes, I think Muni Maharaj in that example explained that line that you are going to be Tirthankar in 10th, and from 10th birth from now, or birth from now, your Atma, why are you doing all this? So I think they explained him the concept of Atma and the continuity of the soul. But then to attain Samyak Darshan, the Jeev has to do dhyan of Atma, right? He has to meditate upon that Atma and to get to that state
of experiencing Atma. Did that really take place right after Muni Maharaj told that lion, and then he attained Samyak Darshan right there? Is that what happened? ओके, तो उस काम के होने की योग्यता थी, इसलिए वो उपादानगत योग्यता तो शेर की थी, लेकिन कोई भी कार्य होने में दो कारण चाहिए होते हैं, निमित्त और उपादान। तो जैसे ही निमित्त मिले और इनकी उपादानगत योग्यता जगी तो वो काम हो गया। तो ऑफ कोर्स जो मुनि महाराज थे उनकी टीचिंग का तो योगदान था ही था, उनने ही तो इस भान कराया था इनको, तभी वो कार्य हुआ था। लेकिन शेर की आंतरिक योग्यता थी, वो भी थी, उसी के कारण से शेर को सम्यक्त प्राप्त हुआ, या उस गति या उनका तो होना ही था, अपन ऐसा भी कह सकते हैं। लेकिन मेन हमारा पॉइंट ये है कि जो निश्चय नय का आश्रय लेगा उसे जो निश्चय नय का आश्रय लेने से ही सम्मंथन होगा। Yes, so my question is more specific. My question is Mhm. more specific. That did lion get into that meditative state of Atmanubhuti to attain Samyak Darshan? And if so, like basically, did that happen just right after Muni Maharaj instructed him? Then he set into a meditative posture. How did all that happen? Yeah, meditative posture, what we think that meditative posture means we just fold our legs and we just fold our hands, then close our eyes and think, okay, I am pure soul. So we have listened about this meditative posture and we can get some medicine, but lion cannot be in that state. Lion तो जैसे चार पैरों पे था, वो तो बैठा रहा, वो उनकी सुनता रहा और उसे अंतरंग में उसे ज्ञान का अनुभव हुआ, उसे सम्यक्त प्राप्त हो गया उसे। हाँ, हो सकता है आंखें क्लोज हुई हो, क्योंकि जब आनंद आता है तो आंखें अपने आप बंद हो जाती हैं। तो उसे आंख बंद करके सोचा होगा, ओ आई एम इन डिलेमा, मैं अनंत संसार में क्यों भ्रमण कर रहा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, है ना। तो वो ऐसे करके पोस्चर बनाया होगा, बराबर बनाया, मतलब हमारे जैसा नहीं, लेकिन आंख क्लोज भी हुई होगी, अंतरंग में अनुभव तो चला ही, तभी उनको अनुभव हुआ है। और हमारे सामने शिवभूति मुनिराज का भी एग्जाम्पल है, शिवभूति मुनिराज भी हमारे सामने है एग्जाम्पल, कि उनका चरित्र समय ऐसा था, उनको कुछ याद नहीं होता था, लेकिन उनको भाव भाषण हुआ, तुष्मास भिन्नम, दाल और दाल की छिलके अलग हैं, उसी तरह से मैं और मेरी आत्मा और शरीर ये सब कुछ अलग अलग हैं। उनको तो केवल ज्ञान हो गया था, सम्यक्त की तो बात भी थी। So it was very good question by Perit ji that वो शेर तो निश्चय नय व्यवहार में कुछ नहीं जानता, लेकिन उसको कैसे हुआ, इसका आंसर बता दिया। उसको सेंस होता है, भाव भाषण होता है, क्योंकि निश्चय नय व्यवहार का डिस्कशन तो हम लोग कर रहे हैं चीज को समझने के लिए। Saurabh ji, one follow-up question. So if Samyak Darshan can be attained with such a little effort, with so little Updesh, then why do we have to study all this really long grunts and spend a lot of time doing so? I understand Nishchay Vyavahar. That may be the follow-up question. Why are we spending so much time if it can be done so easily? Good. हमें वो शेर का सम्मेलन ना इतना आसान दिख रहा है हमें, कि उसे बस दो मुनिराज आए, उन्होंने उपदेश दिया और वो तो सम्मेलन हो गया। ऐसा नहीं है, उसके पूर्व की तैयारी, आने वाली उसकी भवितव्यता, उसकी उपादानगत योग्यता, वो सारी तैयारी कर रहे थे। मैं इसका बहुत सिंपल सा एग्जांपल दे सकता हूँ, देता भी हूँ लोगों को। कोई भी व्यक्ति सफल ना ओवरनाइट नहीं होता। वो कोई मिलीनियर आपको ओवरनाइट दिख सकता है कि यार ये कल के दिन मिलीनियर नहीं था, आज कैसे मिलीनियर हो गया इतना। तो आप जब उनकी केस स्टडी करेंगे, देन यू विल फाइंड देयर कि कोई भी मिलीनियर ओवरनाइट मिलीनियर नहीं होता। लोगों को क्या लगता है, अच्छा मिलीनियर बनना इतना आसान है ना। I just gave last time an example of Professor Mankekar. Punjan ji, I gave this example last time. I don't know, in Australia class or in your class. Yes, sir. Okay, I gave you.
Supreet ji, I just give one example of Professor Mankekar. He is having a net worth of more than 1,000 crore. But before some time, no one was aware about he's a millionaire. तो वो तो 1 लाख रुपए, यहाँ तो प्रोफेसर कितना कमाते हैं? 75,000, 1 लाख रुपए मैक्सिमम, 1.5 लाख रुपए बस स्कूटर से आते हैं। कार भी लेंगे तो मारुति 800, 5-7-8 लाख की कार ले लेंगे। किसी को अंदाज ही नहीं था इतना बड़ा। तो लोगों को अच्छा ओवरनाइट अमीर बन गई है। तो उसने कहा नो नो नो, इट इज नॉट द ग्रोथ ऑफ ओवरनाइट। आई एम इन्वेस्टिंग सिंस लास्ट 25 years. My father told me, never stop investing. Then I continued since then. You have seen the result, but the process is very long. तो हमें क्या लग रहा है, जब इतना इजी है तो why we should do effort? ऐसा भी हो सकता है कि हम अभी तैयारी कर रहे हैं और हमें अगर त्रियंच गति का बंद हो गया हो और हमें सम्मेलन त्रियंच गति में हो, तो कोई फिर कह सकता है यार फिर तो कितना आसान है। लेकिन हम क्या सोचेंगे, अरे भाई ऐसा आसान नहीं है। मैं कई भवों से मेरी तैयारी चल रही थी, किसी परिणामों के फलस्वरूप मैं त्रियंच गति में आ गया, यहाँ मुनि का निमित्त मिला और मुझे सम्मत हो गया। तो वी कैन नॉट से दैट कि वो इंस्टेंट कुछ हुआ था। इंस्टेंट कुछ होता नहीं, ओवरनाइट कुछ नहीं होता है। हम इसे कंपाउंडिंग इफेक्ट बोलते हैं कि कंपाउंडिंग इफेक्ट अपना काम करता रहता है, आप चाहें ना चाहें। तो ऐसे ही वो शेर जो था, उसकी पुरानी जो कंपाउंडिंग थी वो काम कर रही थी अपना, और जैसे यहाँ उसको उपदेश का मैजिक मिला तो सम्मत हो गया। तो दिस फॉलो अप क्वेश्चन इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, और कि अगर इतना आसान है तो फिर हम क्यों इतना पढ़ रहे हैं। तो ये तो सब तैयारी चल रही है हमारी। अब वो हमें कब होगा, हो सकता है इस भाव में हो जाए, हो सकता है देव पर्याय में हो, मतलब इट इज ऑल्सो पॉसिबल कि नरक पर्याय में हो। अगर हमें नरक गति का बंद हो गया हो तो नरक पर्याय में हो, तो कोई कह सकता है कि सम्यक दर्शन जब नरक पर्याय में हो सकता है तो फिर हमें फिर मनुष्य पर्याय में मेहनत करने की क्या आवश्यकता है। बट वी सी द रिजल्ट, वी डोंट नो अबाउट द प्रोसेस। Process is very long. You can see result in a moment, but we don't know about process. Any big result, if you are seeing, if you have any big result, that is the output of a long process. Okay, so हम उस process में हैं अभी, and it might we can get samvedasana in this vow, and it might we will get samvedasana in any pariyaya. That pariyaya may be dev pariyaya, that pariyaya may be triyansh pariyaya, that pariyaya may be tarak pariyaya. Any pariyaya may be there, but this is the process. As Loin महावीर के जीव ने प्रोसेस फॉलो की थी, तो ऐसा ही है इसमें भी कि यद्यपि वो नाम नहीं जानते थे निश्चय व्यवहार का, लेकिन उसके बाद भी उनको सम्मत तो हुआ। तो 2-3 क्वेश्चन प्रेरित जी ने पूछे, बहुत बढ़िया। आप लोग भी पूछ सकते हैं, और प्रेरित जी आपकी तरफ से पूछ लेते हैं क्वेश्चन, तो काफ़ी सारी चीज़ें क्लैरिफाई हो जाती है। ये क्वेश्चन तो बहुत ही अच्छा था कि जब इतना आसान सम्मेलन है कि शेर एक मुनि के उपदेश सुनने से, 2 मुनि के उपदेश सुनने से कर सकता है, तो फिर हम इतना क्यों पढ़ रहे हैं। तो वो प्रोसेस, हमें उनकी प्रोसेस नहीं जानी, हमने रिजल्ट देखा, तो हम इन ट्रांजिट में अभी प्रोसेस में है हम लोग अभी। I'd like to process give हो चल one रही है। example. एक एग्जांपल देना चाहता हूँ मैं कि जैसे लाइक कोई कुत्ता होता है, तो कोई भी एनिमल या कोई भी और कुत्ता या कोई भी प्राणी होता है, तो उसको सबको अग्नि से डर लगता है। सबको पता रहता है, छोटा बच्चा भी रहता है तो उसको भी पता रहता है कि जल जाएंगे अग्नि। तो वो लोग अग्नि से दूर रहते हैं, यानी उनको अग्नि ये नाम नहीं पता है कि अग्नि है, इसको अग्नि कहते हैं, इसका ये है ये, मगर उनको पता है कि ये अग्नि है और इसको हम हाथ लगाएंगे या इसे नजदीक जाएंगे तो जल जाएंगे, उससे दूर रहता है। तो इतना भाव उनके अंदर रहता है। तो इसी तरह मुझे ऐसे समझ में आता है, मैं अपने आप को समझाने का प्रयत्न करता हूँ, तो मैं ये करता हूँ कि आई ट्राई की कोरिलेट की जस्ट लाइक दैट दे आर एबल टू रियली अंडरस्टैंड व्हाट आत्मा इज and consciousness is, and it is separate from the body, and because of their understanding they're able to achieve samyak darshan. Yeah, exactly. This example will be applied here. कि वो जैसे कुत्ता है, उसे अग्नि का नाम नहीं पता, नेचर नहीं पता, थियरी नहीं पता,
बट इट नोज, जानता है कि ये अग्नि है, इसे जल जाऊंगा, तो उसके पास नहीं जाता वो। और ये सारे जानवर है, पता है, सारे जानवरों को अग्नि से डर लगता है। जैसे शेर है, शेर को आग से डर क्यों लगता है? क्योंकि उसे पता है कि अगर आग मेरे बालों में लग गई थोड़ी सी भी ना, तो मैं पूरा जल जाऊंगा, इसलिए शेर कभी आग के पास नहीं जाता। सारे जानवर आग से डरते हैं, वो आग का नेचर जानते हैं ना, उसकी भाव भासना है उसको। तो ऐसे ही जिन जिन जीवों को सम्मिलन होता है, वो उसको आत्मा की भाव भासना है। सो यू नो आवर पॉइंट इज दैट निश्चय व्यवहार में, ऑफ कोर्स निश्चय में, व्यवहार में वी आर अंडरस्टैंडिंग एंड इट्स अ मैंडेटरी टू अंडरस्टैंड। But what Acharya is saying in Gatha number 11 in second line, that सम्यक दृष्टेर भवति जीवा, सम्यक दृष्टि होता है जीव, लेकिन कब होता है? भूतार्थ माश्रितः खलु, जब वो भूतार्थ का आश्रय लेता है तब होता है। जब वो निश्चय का आश्रय लेता है तब होता है। लास्ट टाइम आई टोल्ड यू, और इन एवरी क्लास आई एम टेलिंग यू इन वेरी क्लियर वे, व्यवहार में अपने आप में झूठा नहीं है, व्यवहार में अपने आप में सच्चा है, निश्चय ने अपने आप में सच्चा है। बट व्हेन वी कंपेयर, और जब निश्चय ने को खड़ा करते हैं तो हमें व्यवहार में झूठा दिखाई देता है। निश्चय ने की अपेक्षा व्यवहार में झूठा है। ऐसे देखो तो व्यवहार ने भी निश्चय ने को झूठा बोल सकता है। क्यों? बोले हमारा और आपका नेचर मैच नहीं होता, तो वो उसको झूठ बोलता है, वो उसको झूठ बोलता है। क्योंकि फैक्ट ये है कि विदाउट जस्ट understanding Nischanaya, or without taking shelter of Nischanaya, you will not be able to realize, you will not be able to know your soul. That's why Acharya is telling that you have listened a lot about Vyavharne. It means each and everyone they are just giving instruction about Vyavharne. For example, you must have fasting, you must eat Shuddha Bhojan, you must go temple, these kind of things. But it's very rare who can tell you about Nischana. And without understanding Nischana, you will not be able to know your soul. That's why Acharya is saying here, Bhutarth Masritaha Talu Sammadastir Bhavati Jiva. जीव कब सम्यदस्ती होगा? जब भूतार्थ का आश्रय लेगा। देखिए, मुझे पता है ये थोड़ा सा जो अपना टॉपिक चल रहा है समय सार का, थोड़ा सा गंभीर है। इसे हम गुजराती में बोलते हो आप लोग ना, झीणो है, मतलब सूक्ष्म विषय है ये। तो मैं बोलूँगा कि इट्स नॉट इजी टू अंडरस्टैंड, क्योंकि हमारा बहुत परिचित विषय नहीं है ना। दो सब्जेक्ट विच आर फैमिलियर विद अस, वो हमें बहुत जल्दी समझ में आते हैं, लेकिन ये विषय हमारा परिचित नहीं है। परिचित इसलिए नहीं है क्योंकि हम ही क्लास में चर्चा करते हैं, या आप लोग थोड़ा बहुत कहीं और सुनते होंगे, ऑफिस में कहीं और आप ये चर्चा ना कर सकते हैं, ना कोई सुना सकता है आपको। सो आई नो इट्स डिफिकल्ट, और नॉट डिफिकल्ट बट गंभीर। तो हमें भी अपने एक बार मन को गंभीर बनाना पड़ेगा। ये चीज आपको पता है कि आप जानते हैं अमीर बनना बहुत बोरिंग टॉपिक है, मतलब वेल्थ कमाना बहुत बोरिंग टॉपिक है। इसलिए दुनिया के 99% लोग मिडिल क्लास हैं या गरीब हैं। 1% जो लोग हैं ना, वो ही अमीर हैं। क्यों अमीर हैं? क्योंकि वो जानते हैं अमीर बनना बोरिंग है, इसके लिए पेशेंस चाहिए, वेट करना पड़ता है। सफलता भी बहुत बोरिंग है, पता है, सफलता इंस्टेंट नहीं मिलती है, इसके लिए भी सालों साल प्रयास करते रहना पड़ता है। इसलिए 1% लोग ही सफल है, 99% नहीं है। इसी तरह मैं अध्यात्म में बोलता हूँ, अध्यात्म को समझना भी बड़ा बोरिंग है, पता है। इन दिस इंस्टेंट वर्ल्ड वेयर यू वांट टू हैव अ कप ऑफ कॉफी, विद इन 5 minutes you can have that. If you want to order anything at the hour of midnight, on one click you can order that. So we see in this world that each and every work is just happening in very instant manner. You have to transfer money instantly. You can transfer money. Of course, that may be possible. That are possible, not may be possible. But here, if we talk about Adhyatma, about these granths,
or other granths, it's not very easy to understand. It will require your patience, attention, and thinking as well. After reading this, it means that to spend 1 hour with us or in this class is not sufficient. You yourself will have to study about this. Otherwise, you will not be able to understand. We are not here to pass the time. But, Sunday is the class time, and now we must attend that. Of course, it's a very good sign that you are attending and you are trying to understand. But I want to say that it's not sufficient. You will have to understand the yourself. So why I am just telling you that it is a bit difficult, because it's not very familiar. It's not very common topic. जैसे कि सफलता बहुत बोरिंग है, पैसा वाला बनना बहुत बोरिंग है, समझदार बनना बहुत बोरिंग है, ऐसे ही अगर हम बोरिंग सहन कर सकते हैं तो ये अध्यात्म बहुत बोरिंग है। इसीलिए कोई इसमें वो एडवेंचर नहीं है जो आप बाहर में लेना चाहते हैं। वो सांसारिक दुनिया है और ये आत्मिक दुनिया है। ये तो थोड़ा फर्क क्या, बहुत ज्यादा फर्क रहेगा। वो पूरब है और ये पश्चिम है। So I will not say that it's very easy to understand, but I will say that though we are not familiar, this topic, this subject is not very familiar. So it will be a bit difficult to understand, and I hope all of you will pay proper attention over here. Then you will be able to understand. But once you will understand it, you will have the result in the form of permanent peace and enjoyment. हमारा दिमाग इतना क्लैरिफाई हो जाएगा, इतना क्लियर हो जाएगा दुनिया को देखने के उसमें कि हमें कभी कोई ना मूर्ख बना सकता है, ना कभी कोई हमें दुखी कर सकता है। और जो अपने प्रेरित जी स्ट्रेस मैनेजमेंट के सेशंस चलाते हैं ना, वो सारे के सारे इसी बेसिस पे हैं कि यू कैन रिमूव योर स्ट्रेस बाय अंडरस्टैंडिंग जैनिज्म। तो आप एक बार ये पूरा समझ लें चीजें कि भाई मैं कौन हूँ, हु एम आई, तो आपका वैसे भी स्ट्रेस रिमूव हो जाएगा आपका। और वैसे भी सारी दुनिया आजकल स्ट्रेस में ही है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस में। हाँ, नाउ सो वी हैव कंप्लीटेड गाथा नंबर 11. If you have any question, you can ask me. Next time I will ask you Gatha number 11. You can read by yourself. So I will ask you about example of that Nirmal Jal and Katakfal, and you will have to apply on Atma. And second, Pandit Jayachandji Chhavda Vichar, where he is telling about Bhutat and Abhutat and Nischay and Rohatne, and where he is saying that Jirvani त्यागवाद रूप है और प्रयोजन के अनुसार वो यथा योग्य मुख्य और गौण का कथन करती है। So Gatha number 11 we have completed, and now we are on Gatha number 12. So here, is it clear to all? Saurabh ji, Gatha number 11 is clear? जी सौरभ जी। आज तो काफी सारे लोग हैं, आज विरल जी भी हैं, अमी जी हैं, एंड ओके प्रीति जी हैं, रोहन जी भी हैं। So is it clear to all? If it is not, so we can repeat it as well. हाँ जी। Okay. हाँ रोहन जी, क्लियर है गाथा 11? जी सौरभ जी। Okay. So now today, though it is more than 8:30, गाथा नंबर 12 केवल पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, मैं यहाँ से पढ़ता हूँ एक बार। शुद्धो शुद्धा देशो रादब्बो परम भाव दर्शी व्यवहार देशिदापुर जेदु अपर में दिट्ठा भावे। अगेन आई एम रीडिंग फ्रॉम हियर। शुद्धो शुद्धा देशो रादब्बो परम भाव दर्शी व्यवहार देशिदापुर जेदु अपर में दिट्ठा भावे। At the time of reading Prakrit, remember one thing, there is no na
ना नल का प्राकृत में नहीं होता है, वहां ना को णा मतलब ना प्राकृत में होता ही नहीं है, यहाँ णा होता है। जो सा होता है वो केवल एक सौरभ वाला सा होता है, शक्कर वाला और षटकोण वाला सा नहीं होता है। इसलिए जब हम हिंदी में या संस्कृत में बोलेंगे तो बोलेंगे शुद्धो, लेकिन प्राकृत में बोलेंगे तो बोलेंगे शुद्धो। तो प्राकृत लैंग्वेज इज मोर इजी देन संस्कृत। तो आप लोग पढ़िए एक साथ इसको, शुद्धो शुद्धा देशो, सभी लोग एक साथ पढ़िए। शुद्धो शुद्धा देशो नादवो परम भाव दरिसिहि व्यवहार देसिदा पुनः जेदु अपरमेठिदा भावे। ओके, आपने एकदम सही पढ़ा। आप सब लोग एक साथ मिलके पढ़िए। अनम्यूट योरसेल्फ एंड कैन रीड। शुद्धो शुद्धा देशो नादवो परम भाव दरिसिहि व्यवहार देसिदा गुण जेतु अपरमे भावे। गुड। मैंने आप लोगों को बताया था प्राकृत की गाथा पढ़ना इज अ काइंड ऑफ स्पीच थेरेपी, और हमारी शब्दावली प्राकृत पढ़ने से बहुत क्लैरिफाई हो जाती है। मुझे पर्सनली बहुत फायदा हुआ प्राकृत पढ़ने से। शब्द बहुत क्लियर हुए, जो टंग ट्विस्ट होता है शब्दों में वो बहुत प्रॉपर होता है। तो आप लोग भी फील करेंगे धीरे धीरे कि प्राकृत पढ़ते पढ़ते आपकी शब्दावली बहुत क्लियर हो गई। आपके बोलने में मतलब ये पर्सनालिटी का पार्ट है। तो व्हेन यू विल स्पीक इन पब्लिक और इन प्राइवेट मैनर, तो वो फील करेंगे कि अरे ये तो बहुत क्लियर आपके शब्द हो गए। तो हमें अध्यात्म का लाभ तो मिलने ही वाला है, साथ साथ में हमें लौकिक हमारी पर्सनैलिटी भी डेवलप होने वाली है। ओके, तो हम लोगों ने ये 12 नंबर की गाथा पढ़ी है, और 12 नंबर की गाथा हम लोग नेक्स्ट टाइम इसको डिस्कस करेंगे। तब तक आप लोग इसको 11 नंबर तक पढ़ लीजिए। आप लोग चाहें तो मैं 1 नंबर गाथा से लेके 11 नंबर तक आपका टेस्ट भी ले सकता हूँ, और आप चाहें तो 2 सेशन में ले सकता हूँ। लेकिन आप लोग पढ़िए और पढ़ के फिर मुझे बताइए कि 1 से 11 तक आपने क्या पढ़ा। किसी कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझे पर्सनली भी टेक्स्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। और इस तरह से हमारा आज का सेशन पूरा हुआ। जी जी बताइए। One suggestion, maybe what you can do is maybe you can type up few questions for us as a class, and we just have to kind of maybe reply to you individually. That will hold us accountable. आप क्वेश्चन लिख के भेज दीजिए हमें, then we have to write the answer to you, maybe short answer, but we have to get back to you. Maybe we You're can spending do, so much. So I'm just giving you. maybe we can I mean, do you're the spending so Google much form. time, Saurabh ji. Yeah, sorry, go ahead. No, sorry, no, that's okay. Maybe we can do a Google form where he can ask questions, and if it is multiple choice or if it is little detailed answer, we can put in that in English, and then he Yes. can see who gave what answer. Yes, I think Google form is a good, and that way we need to be Of accountable. course to we you can do, spending but so much you, time. all of you will have to promise me. All of you will have to promise me and assure me that you will study from Gatha number 1 to 11. Then I will make a Google form and will send you the link. So without Sure. reading, I think there will be no use of that. And my purpose is not to complete Granth. My purpose is that you are just spending here your valuable time. I am also spending here my valuable time. Then you must get something meaningful. तो मैं बना दूंगा, आपको कोई दिक्कत नहीं, गूगल फॉर्म बना के मिल जाएगा। लेकिन पहले आपको ग्रुप पे ये डालना पड़ेगा सब लोगों को कि वी हैव जस्ट स्टडीड फ्रॉम गाथा नंबर 1 to 11। देन आप मुझे अश्योर कीजिए, फिर मैं गूगल फॉर्म बना दूंगा। बोलिए, आर यू रेडी? Yes, you're ready, sir. I'm ready. Yes. हाँ, देखिए मैंने पहले ही बता दिया, समय सार को समझना इट्स नॉट अ कप ऑफ टी ऑफ कॉमन पुरुषार्थ। सामान्य पुरुषार्थ से काम नहीं चलेगा। यू कैन अर्न मनी, इट मीन्स यू कैन अर्न $50,000
$40,000 इन अ ईयर इन वेरी इजी वे। पर अगर आपको ज्यादा कमाना है, $1 लाख, $1.5 लाख, $10 लाख, $1 मिलियन इन अ ईयर, आपको पुरुषार्थ करना पड़ेगा। ऐसे ही कोई कहानी पढ़नी है तो वो तो ठीक है, पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये इतना गहन ग्रंथ समझना है जिसे हम जिनागम का सिरमौर बोलते हैं, तो उसके लिए तो हमें थोड़ा सा प्रयास और पुरुषार्थ करना ही पड़ेगा। आई होप आप सभी लोगों ने जो धर्मनाथ भगवान की वो दिव्यधनी है वो सुनी होगी। उसमें पूरा निश्चय का मैंने विषय वहाँ कवर किया था, तो उसकी काफी एप्रिसिएशन भी मिल रहा है मुझे। वो दिव्यधनी काफी लोगों को अच्छी लगी। तो वहाँ आप सुनेंगे तो वहाँ यही वाली बात आई है कि जो आत्मा का आश्रय लेता है वही सब में नसीब प्राप्त करता है। तो हम लोग डन करते हैं कि गूगल फॉर्म बनाएंगे और हर 10 गाथा पे भले ही अपन ऐसा कर सकते हैं, हम हर 10 गाथा पे गूगल फॉर्म बना लेंगे और बस आप लोग पढ़ लीजिए, मुझे ग्रुप पे भेज दीजिए। जो पढ़ लेना मुझे भेज दीजिए आप कि हमने 1 गाथा से 10 गाथा तक, 11 गाथा तक हमने रिपीट कर लिया, पूरी रिवीजन कर लिया हमने, तो मैं भेज दूंगा। तो करें, फाइनल करें इसको, भेज दीजिए अपन कि पढ़ लेंगे और आप मुझे भेजिए और फिर मैं गूगल फॉर्म आपको दे दूंगा, राइट? सर जी, आप गूगल फॉर्म भेज ही दीजिए। बेसिकली इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि बिफोर राइटिंग रिप्लाइंग टू द फॉर्म वी हैव टू स्टडी इट। I mean, you can write an instruction that study it before answering these questions. So I think we have to get back. I think you don't leave it a choice. अगर आप ऐसा choice रखेंगे कि we have to individually get it back, a lot of us may not get back to you. You know? सब लोग busy हो जाते हैं। I think Saurabh ji is saying what Prerit is, first he wants all of, us to revise all these 10 gathas, and then he will again be ready with the Google form. So I think that's the good part too. Just he should be assured that we are already ready at that time. Okay. So I mean, what we can do is let's put it in the group itself that we are ready. That way we can all Right. motivate each other. Because Correct. if we rely on replying Saurabh ji individually, it might not happen. I think sometimes. Right. No, as a group we should just say, hey, No, not individually, but in group you can post. In group you can post, I have completed my revision from Gatha number 1 to 11. So I will count that 90% of the people have completed their revision. Okay. Then I will post the form. Okay. Perfect. Yeah. Okay. तो चलिए जिनवाणी स्तुति लेते हैं। सौरभ जी जिनवाणी स्तुति पढ़िए। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सत बार है, वंदना सत बार है। ओके, जय जिनेंद्र सभी को। अगली बार मिलते हैं। Jai Jinendra. जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।